Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CSEET, and we are will study in a session business environment. And today we're going to start an entirely new chapter, and that chapter is none else than business environment itself. यानी कैसे business environment कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे इंडिया की इकोनॉमी को, कैसे हमारे परम पूज्य पकिंगी बाबा ने कैसे, ठीक है, अपने आप को संभाला, अपने आप को मल्टीनेशनल राइवल्स के आगे रख के compete किया. All these things you're gonna study in this very chapter. All right, so yeah, let's study CSEET का business environment subject का business environment chapter. All right, so yeah, let's business environment आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 7. सो या बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो यार सिंपल सी बात करते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे जाके एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, every business in some or the other way has an impact of its environment. यानी हर बिजनेस को उसके एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है. Like we cannot live in a vacuum, right? Just like that, business cannot operate in a vacuum. It has to interact with the environment and adapt itself. And this is where business environment is very important for every business to make its moves. So chalo, let's get started. The term business environment refers to the totality or collection of all internal and external aspects, including people working in the company, customer demands and expectations, supply and demand management, clients, suppliers, and owners, as well as government actions, tech innovation, social trends, market trends, economic development. These elements have a direct or indirect impact on how a firm operates and performs its functions. These factors taken together have an impact on the environment and situation of the business or corporate entities. हर बिजनेस को आपके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा. आपके एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके कस्टमर की डिमांड्स क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है. एयरटेल वोडाफोन इस पूरी, ये कौन सा इंडस्ट्री है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, सॉरी VIN, BSNL, ये कौन सा इंडस्ट्री है बताओ तो मुझे. वंडरफुल गाइज, दिस इज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. तो इन सबको धीरे धीरे कौन सी टेक्नोलॉजी पे स्विच होना पड़ा? बोलो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे स्विच होना पड़ा सबको? बोलो जल्दी. 5G पे स्विच होना पड़ा. क्यों? क्योंकि इंडियंस चाहते, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है क्या? हाई स्पीड इंटरनेट. सप्लाई और डिमांड, मैनेजिंग द क्लाइंट, सप्लायर्स, गवर्नमेंट की एक्शंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सोशल ट्रेंड्स. क्या हर बड़ी कंपनी सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है? बोलो. Every company, they have to be. Then these elements have a direct or indirect impact. जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरमेंट का हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, वैसे ही ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट होता है. External factors includes what? They include economic condition, tech advancement, legal and regulatory framework, socio-cultural trends, competitive landscape, among others. So इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, लॉ. जैसे अब हमारी क्लास देख लो, सुबह आप ऑफलाइन अटेंड करते हो, इवनिंग में आप अभी हमारे साथ ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो. और ये जरूरी है क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं आजकल. क्या कहते हो? स्टूडेंट्स आर टेक सेवी, उनको मजा आती है यार, ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्विज देते हैं, कंपटीशन वैसा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है. वो जमाना गया, क्या कहते हो, जहां पे बोर्ड और चौक से काम हो रहा था. क्या कहते हो? डू यू एग्री गाइस?
टेक्नोलॉजी बेटर हुई है तो सिचुएशन भी आप बेटर हुई है, आपको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा. देन इंटरनल फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स विद इन द कंपनीज कंट्रोल. सो गाइस जो इंटरनल फैक्टर्स है वो internal factors refer to the elements within the company's control such as organizational structure, resources, culture, operational process. Understanding the business environment is essential for business to anticipate changes. क्या changes होने वाले ये पता करो. To anticipate changes, highlight it. Anticipate ने उम्मीद करो कि क्या changes होने वाले हैं, पता करो कि क्या changes होने वाले हैं. Identify the opportunities. Identify the opportunities and mitigate risk effectively. Risk को कम करना है, opportunity identify करो, risk को कम करो. Ultimately shaping the strategies for sustainable growth and success. Sustainable, what do you mean by the word sustainable? Anyone, any clue? Sustainable यानी क्या? Sustainable यानी क्या? जो लॉन्ग टर्म, करेक्ट, जो लॉन्ग टर्म तक चले. तो बिजनेस को जल्दी जल्दी एनवायरमेंट क्या चेंज होने वाला है इसको एंटिसिपेट करना है, समझना है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और फिर एनवायरमेंट जैसे बदलने वाला है उसके हिसाब से खुद को बदलना है. द बिजनेस एनवायरमेंट एनहांसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस by assisting in identification of business prospects, utilizing helpful resources, assisting in planning. Business environment come in a variety of forms including macro and micro environments. ये macro और micro environments क्या होते हैं हम देखेंगे. The key component of any firm in its environment, suppliers, ठीक है, the key component of any firm is its environment. Suppliers, competitors, media, government, customers, market circumstances, investors, and numerous other entities operating on the outside all contribute to the business environment. So let's begin by learning about the business environment basic and its significance. तो चलो देखते हैं मार्केट में होता क्या है. तो एक डायग्राम है, चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं. बिजनेस मॉडल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस. पहले समझते हैं इंडस्ट्री फोर्सेस. हमारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. पहले तो सप्लायर्स एंड अदर वैल्यू चेन एक्टर्स. हमारे सप्लायर्स कैसे हैं, कौन सी वैल्यू चेन के फैक्टर्स है. देन स्टेक होल्डर्स, हमारे बिजनेस से कौन से लोग रिलेटेड है. कंपिटिटर्स कौन से हैं, इनकम्बेंट्स यानी कंपिटिटर्स. न्यू एंट्रेंट्स यानी नए प्लेयर्स कौन से आने वाले हैं. जैसे इस इंडस्ट्री में नया प्लेयर आने के बाद सब कुछ, ये इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई. कौन आया था वो नया प्लेयर, सब उथल पुथल कर दिया. बोलो. जियो आया. पहले ये लोग कॉलिंग का चार्ज लेते थे. एक जमाना था दोस्तों, मेरे पापा के पास 1992 में फोन आया था सबसे पहली बार. सेलुलर फोन कहते थे उसको, मोबाइल फोन या सेलुलर फोन, स्मार्टफोन जो आप कहते हो. तो इतना बड़ा फोन था वो, ऐसे यहां से यहां तक आता था वो. और एक फोन कॉल 34 रुपीज का होता था. कितना पर मिनट, कितना 34. आउटगोइंग का 34 रुपीज था, इनकमिंग का 17 रुपीज पर मिनट था. जियो आया, इन्होंने कॉलिंग और मैसेजिंग क्या कर दिया, फ्री कर दिया. तो न्यू एंट्रेंट से क्या इंपैक्ट होता है. देन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से क्या इंपैक्ट होने वाला है ये पता करो. उसके बाद की ट्रेंड्स क्या है. रेगुलेटरी ट्रेंड्स, लॉ क्या कहता है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, सोसाइटल एंड कल्चरल ट्रेंड्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स. मार्केट फोर्सेस, मार्केट सेगमेंट्स, नीड्स एंड डिमांड, मार्केट इश्यूज, स्विचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू अट्रैक्टिवनेस. कैसे मार्केट का कौन सा फोर्स कैसे काम कर रहा है, क्या हर सेगमेंट में इक्वल पैसा है, पता करो. देन मैक्रो इकोनॉमिक, जो बड़े पैमाने पे, द बिगर पिक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, कैपिटल मार्केट यानी कौन सा मार्केट बताओगे मुझे. कैपिटल मार्केट यानी कौन सा मार्केट. करेक्ट. इंडिया में कोई कैपिटल मार्केट का एग्जांपल दे सकते हो. स्टॉक मार्केट, करेक्ट. देन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज एंड अदर रिसोर्सेस. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस को समझना है. इन सारे फोर्सेस, ये सब कुछ क्या है. ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, ऑल दिस थिंग्स टुगेदर फॉर्म एनवायरमेंट. क्या बनाता है ये सब मिलके, एनवायरमेंट बनाता है. और आपको ये एनवायरमेंट समझना पड़ेगा. सो let's check it out. Now let us look at some of the definitions
let us look at some of the definitions of business environment. According to Barry Richmond and Melvin Coppin, environment consists of factors that are largely, if not totally, external and beyond the control of individual enterprise and their management. These are essentially the givers within which firm and the management must operate in a specific country. Highlight कर लो specific country. Country to country strategy differ करेगी. कैसे मैं आपको बताता हूं. In a specific country and they vary often greatly from country to country. Country to country आपकी कंपनी का strategy, country to country आपके कंपनी का strategy बदलेगा. कंट्री टू कंट्री आपकी कंपनी का स्ट्रैटेजी बदलेगा. कैसे सर? चलो देखते हैं. एनीवन? लक्स. लक्स यूज कर सर, एकदम पर्सनल सवाल पूछ रहे हो. व्हाट इज दिस? लक्स यूज करने वाले कोई हमारे क्लास में? लक्स, बेदिंग बार, रोमित, रुचिर, शौनक. ऑलराइट. सो कोई बता सकता है? लक्स, मुझे पता है कोई लक्स के लवर्स नहीं है हमारे क्लास में, बट हाँ, लक्स रोज की कीमत क्या है? एनी क्लू? लक्स रोज की कीमत इंडिया में 10 रुपए का. इतना सस्ता नहीं, बड़ा बड़ा 125 ग्राम वाला बताओ. 30 रुपीज का. अब इतना ही 125 ग्राम्स वाला जो बार है वो, यानी लक्स के तो हम कोई बड़े फैन है ही नहीं. लक्स के तो हमें बिल्कुल भी, हमें ज्यादा पता नहीं है, हम ज्यादा, हमारा फेवरेट है ही नहीं है. लेकिन रोज फ्लेवर ना गल्फ कंट्रीज में बहुत चलता है, तो वहां पे इसको लक्स बॉक्स बोल के बेचा जाता है. और दुबई में, सारे मिडिल ईस्ट में इसका कीमत इंडियन रुपीज में 130 है. अच्छा, लक्स बॉक्स सोफिस्टिकेटेड. यानी देखो ना, उन्होंने कंट्री टू कंट्री डिफर करता है बोला ना. इसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको. एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेट में बेच रही है, अलग अलग पैकेजिंग में. अब एक और कंट्री बताओ सर, कौन सी कंट्री तुम्हारी फेवरेट? लक्स रोज इन पाकिस्तान. तुम लोग नहा के क्या करोगे बे? हाँ, और तुम लोग खुला बेचते हैं वहां पे 5 रुपए में खुला, ऐसा न्यूज़पेपर में बांध के दे देते हैं. कंट्री टू कंट्री प्राइस बदल रहा है, पैकेजिंग बदल रही है. छोड़ो. साइज ऑफ डेयरी मिल्क इन इंडिया, 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक का पैकेट है. 30, 40, 50 रुपीज तक के पैकेट है. सिल्क लिया तो 200 रुपीज तक के पैकेट है. छोटा साइज का होता है इंडिया में, और अगर आप यूएस में देखोगे तो बड़ा होता है. चॉकलेट थोड़ा बड़ा होता है. क्यों ऐसा? इंडिया के बच्चे अजीब है. इंडिया के बच्चे ऐसा छोटा थोड़ा 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 खाओ ऐसा समझते नहीं है. एक बार अगर पैकेट खुला तो बच्चा मर जाएगा लेकिन पूरा खाएगा. एम आई राइट गाइस? डू यू एग्री विथ मी? उससे आधा वाधा तो वो पूरा मर जाएगा. चॉकलेट खा खा के मर जाएगा, आंसू आने तक चॉकलेट खाते छोटे बच्चे, लेकिन पूरा वो एक खुद ही खाएगा. इतना सा भी किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा. करेक्ट? इंडिया के हिसाब से डेयरी मिल्क इसलिए छोटा रखा है उन्होंने. एरियल पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस था ये, पूरे दुनिया में. इंडिया में आए, चल ही नहीं रहा. 150 रुपए पर केजी का लॉन्च किया था इंडिया में उन्होंने. फिर एक दिन उनको समझा कि इंडियन लोगों को 2-2 रुपए वाले सैशेट में बेचो तो बिकेगा. शैम्पू से लेके हर चीज सैशेट्स में आने लग गई. एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, कंट्री के, हमारे स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से हर चीज बदलती है. तो बिजनेस एनवायरमेंट को समझ के आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट डेफिनेशन बाय सर कीथ डेविस. According to Keith Davis, business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surrounds and affect the business. Okay, of course, सारे जो factors है वो सारे एक साथ काम करते हैं और सारे हमें affect करते हैं. Bayard or Wheeler defines business environment as the total of all things external to the firm and industries which affect their organization and operation. According to Arthur Wheeler, business environment encompasses the climate or set of conditions, economic, social, political, institutional, in which business operations are conducted. And the last one, according to Glock and George, the environment includes all the factors outside the firm which can lead to opportunities or threats to the firm. एक मिनट, ये जो environment है हमें अपॉर्चुनिटी भी देता है और थ्रेटनिंग भी है क्या? क्या कहते हो? एनवायरमेंट जो है हमारे अपॉर्चुनिटी भी देता है और थ्रेट भी है हमारे लिए. तो इसलिए, ठीक है, ये जो बोला है ना उन्होंने, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो ये जो आप सीएससीईटी का एग्जाम देने वाले हो, चलो तुम लोगों का स्वॉट करता है. आप जो सीएससीईटी का एग्जाम देने वाले हो,
ये कहां लिखूं मैं? तुम्हारे स्ट्रेंथ में लिखूं, वीकनेस में लिखूं, अपॉर्चुनिटी में लिखूं या थ्रेट में लिखूं? सीएसईटी एग्जाम बोलो। करेक्ट, वेरी गुड। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो थ्रेट क्या है आपके लिए? व्हाट इज द थ्रेट गाइस? क्या थ्रेट क्या है? ए, एग्जीक्यूटिव में तो जाने की हो ना, जब जाएंगे तब देखेंगे। थ्रेट क्या है सर? एकदम हाई एंड समर्स नहीं, आपके लिए सीएसईटी अगर अपॉर्चुनिटी बन गई तो ठीक है, इस एग्जाम को पास करने में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके लिए? क्या थ्रेट्स है सीएसईटी पास करने में? क्या थ्रेट्स है? थ्रेट्स ये है कि अभी आपको समर्स बहुत हार्श रहेंगे जब आपकी एग्जाम रहेगा, राइट? तो तबीयत खराब होना, हीट वेव्स आ जाना, इलेक्ट्रिसिटी चली जाना एग्जाम के वक्त, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, राइट गाइज? कंप्यूटर हैंग हो जाना, ऑल द मदर ऑफ ऑल थ्रेट्स। सो गाइस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इंटरनेट इशू, इलेक्ट्रिसिटी इशू, हीट वेव्स इशू, ये सारे थ्रेट हो सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है आपकी इस एग्जाम को पास करने के लिए? स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेस में बता देता हूं। वीकनेस है हमारा लेजीनेस, और हमारी क्या लिखा है सर आपने ये? और हमारी लेजीनेस के अलावा हमारी, बोलो क्या है ये? क्या है ये? सर जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं कुत्ते की जैसी नींद आती सर, आपको क्या बताए सर, है ना? लेजीनेस। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? क्या आप में एक वो फैक्टर है जिसके कारण आप ये एग्जाम पास कर पाओगे? है क्या तुम में कोई बात? लेट्स स्टार्ट विद रोमित। रोमित बता, क्या स्ट्रेंथ है आपकी? क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, सिंसियर हो, वेरी गुड। चिन्मयी, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? गार्गी, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, यस यस। गार्गी बी, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? सॉरी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वंडरफुल। गौरी, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ बेटा? Palak, what's your strength? Like getting something in a good way. All right, understanding, good understanding. Rucha, what's your strength? अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा स्टबर्न। Very good, very good. Seriousness, seriousness, dedication, wonderful. तो गाइस, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप का स्वॉट करना है ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट समझ में आए। याद रखना, ठीक है? स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हेल्पफुल होते हैं, वीकनेस और थ्रेट्स हार्मफुल होते हैं। आप सब लोग अपने खुद का स्वॉट करके लाएंगे, कल की क्लास में मैं चेक करूंगा। सुबह कूल, ऐसा पूरा एक आधा पेज ही डेडिकेट कर देना इसको, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मैंने बता दिया है। जनरल वीकनेस होता है लेजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, एडिक्शन टू स्मार्टफोन। स्ट्रेंथ आपको ढूंढनी है। तो चलो वी मूव अहेड, हमने सारी डेफिनेशन देख ली। लेट्स चेक आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। The business environment offers both possibilities and threats. A good manager of business not only recognizes and assesses the environment, but also respond to these outside factors. क्या कहा था मैंने? बिजनेस के इर्द गिर्द होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा? हाँ, इंटरैक्ट करना पड़ेगा और अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। आपको ये सारे फैक्टर्स समझ के, ठीक है, नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेस एंड असेस द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दीज आउटसाइड फैक्टर्स। If we take into account the following detail, we can clearly see how important the business environment is. सबसे पहले business environment में it enables us to identify business opportunities. Not all the changes are bad. If recognized and assessed, they may contribute to company success. Finding a change and utilizing it as a tool to address a population or businesses challenges is crucial. For instance, ठीक है, ये redbus.in, ठीक है, फनिंदर सामा,
ही इज द को फाउंडर ऑफ रेडबस। सारे ही अगर एप्स को हम लोग देखें तो कहीं ना कुछ कमी थी मार्केट में, उसको उन्होंने फुलफिल की। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी मार्केट में, उस प्रॉब्लम को उन्होंने फुलफिल किया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी मार्केट में, उस प्रॉब्लम को उन्होंने फुलफिल किया है। हर ब्लिंकिट, डंजो, बिग बास्केट, जोमैटो, पेटीएम, बाइजूस, बुक माई शो, स्विगी, फ्लिपकार्ट। फॉर इंस्टेंस, द इंडियन नीड फॉर टिकट बुकिंग bothered Mr. Faninder Sama. He used to drive a long way to his travel agency to make his reservation, but even then he wasn't sure if the seat was guaranteed. In response to the issue, he recognized a chance to create an app and joined forces with another person to create online ticketing platform known as रेड बस। फनिंदर सामा, इन्होंने रेड बस बनाया क्योंकि उसे एंजाइटी होती थी कि यार मुझे टिकट मिलेगा या नहीं घर जाने के लिए। सो गाइस, हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको आपको बताएगा वेयर इज द थिंग। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Utilizing the beneficial resources needed for a firm requires careful examination of business environment. It aids the business in managing these resources and transforming them into products and services. तो जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करके हम लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज बना के दे देंगे। उसके बाद यार दुनिया हमेशा बदलती है, क्या कहते हो? दुनिया हमेशा बदलती है, क्या कहते हो? बोलो। Yes. No guys, I have started teaching in 2011. Now it's been 15 years since I'm teaching. But trust me guys, पहले मैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे नहीं पढ़ाता था। पहले ये क्विजेस नाम की कोई चीज थी ही नहीं, ऐसा कोई ऐप पता ही नहीं था मुझे। बट जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, यू हैव टू कोप अप विद द चेंजेस। Change is the only constant, as you know. The company needs to be aware of the constant changes in the business environment, including shifts in the customer demands, new fashion trends, new government regulations, tech advancements. The firm can implement a response to deal with those changes if it is aware of these predictable developments. तो गाइस, आपको चेंज होना पड़ता है। हर किसी को, हर बिजनेस को चेंज होना ही पड़ता है। जस्ट एकदम वाइल्ड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेक अ वाइल्डेस्ट, नॉट वाइल्ड एग्जांपल, एक एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेक अ वाइल्डेस्ट ऑफ योर गेस। कोलगेट क्या बनाता है? ये कैसा गैस है, तो हमको पता ही है। बताओ। कोलगेट टूथपेस्ट, करेक्ट। वी ऑल नो कोलगेट इज अ टूथपेस्ट जायंट। ऑलराइट, कोलगेट की टूथपेस्ट के पहले का प्रोडक्ट क्या था? गैस करो। टूथपेस्ट के पहले का प्रोडक्ट, नो क्लू? Come on. Guys, you will never guess. कैंडल बनाते थे लोग, कैंडल। फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो गई, कैंडल का सेल कम हुआ, रोज रोज बेचने की आदत थी ने, रोज रोज बिकने वाला प्रोडक्ट बनाया, फिर टूथपेस्ट। एनीवे, नेक्स्ट, नोकिया। ऑफ कोर्स हम सबको पता है, कनेक्टेड पीपल, दे कनेक्टेड पीपल थ्रू देयर सेलुलर फोन, स्मार्टफोन्स। नोकिया का पहला बिजनेस क्या था फोन्स के पहले? हाँ रोमित बोल। सबको पता है नोकिया फोन्स बनाता है, लेकिन नोकिया का पुराना बिजनेस क्या था? नोकिया का पुराना बिजनेस टॉयलेट पेपर्स बनाते थे, ये कहां फोन बनाने लग गए? उसके बाद, ठीक है, इन सारे फोन्स में क्या कॉमन है? बताओ क्या कॉमन है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड्रॉइड। एक जमाने में नोकिया नंबर 1 फोन हुआ करता था। आज बता दो आप में से कितने लोग नोकिया फोन यूज कर रहे, बोलो। तुमने बचपन में नोकिया फोन ही देखा होगा टू स्टार्ट विथ, राइट गाइस? Yes. लेकिन आज किसी के पास नोकिया का कोई फोन नहीं है, क्योंकि उन्होंने एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया। सो यू हैव टू कोप विद द चेंजेस। The company needs to be aware of the constant changes and be aware of the predictable developments. For example, Nokia failed to adapt to the change by non-incorporating operating system Android into its smartphones at a time when the market for Android OS was booming and growing, and consumers were choosing Android device for its user-friendly interface and app. They lost a great deal of market value by failing to adapt. Then, assistance in planning. This is yet another facet of how crucial corporate environment is.
Planning only refers to the future task that must be completed. It is up to the business to select what plans it needs to develop in order to address the future, solves the problem, or take advantage of opportunity when the business environment offers a problem or an opportunity. A business can incorporate plans to combat the modifications and to for a secure future after assessing developments that have been offered. तो guys, अगर आप थोड़ा सा business environment को study करते हो तो आपको planning करने में मदद मिलती है. Next, helps in improving performance. Businesses that are actively monitoring their surrounding not only adapt to changes but also thrive in them. Adapting to external influences enables a company to increase performance and remain competitive. So environment को study करते रहो, नई चीजें ढूंढते रहो और देखो कि कहां और opportunity और अपने आप को better बनाओ. Next, ये हो गया. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क तो होगी. हाँ, रिस्क तो होगी. अगर आप बिजनेस की बात करो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो तो रिस्क तो हमेशा रहेगी. The business environment is dynamic and often unpredictable. By monitoring external factors such as economic fluctuation, regulatory changes, regulatory ने लॉ के जो लॉ में जो चेंजेस होते हैं, लीगल चेंजेस एंड टेक एडवांसमेंट्स, बिजनेस कैन एंटिसिपेट रिस्क एंड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिनिमाइज देयर इंपैक्ट. तो गाइस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा आपको. रिस्क को मैनेज करना है. रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना है. पेटीएम के साथ गड़बड़ होगी ना, है ना? डिड यू फील पेटीएम के साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया? हुआ क्या महसूस आपको? है ना? पेटीएम इतना अच्छा कंपनी था, अभी भी यूज हो रहा है. पेटीएम ऐप यूज हो रहा है अभी भी. गाइस बीच में पेटीएम पे कुछ समय के लिए बैन ला दिया गया था, ठीक है, क्योंकि कंप्लायंस और गवर्नेंस उन्होंने लॉ फॉलो नहीं किया था. The factors that are beneficial towards one's business may be the doom of another. Doom यानी negative. The relationship between factors that affect a business and the particular business is highly relative. But there are also factors that affect similar business in an compliance. Businesses operate with a complex regulatory environment. Complex यानी लॉ का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है लॉ कॉम्प्लिकेटेड है. इसीलिए तो हमारी जरूरत पड़ती है ना. लॉ कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए तो कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है. आप समझ रहे हो क्या? हैड इट बीन सो इजी, सब लोग बनते नहीं. कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए सबके बस का भी नहीं है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट टू अंडरस्टैंड. ओके. Understanding and complying with the relevant laws, regulation, industry standards are essential for avoiding legal issues, reputational damage and financial penalties. तो गाइज हमारा जो बिजनेस है सीएस बन के, वो यही है, कंप्लायंस और गवर्नेंस. कंपनी पूरे लॉस फॉलो करती है या नहीं ये चेक करना और उनसे कंप्लायंस करवाना, यही हमारा मेजर काम होता है. कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, यही अपना काम है. इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है. सो गाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विद द चेंजेस, असिस्टेंस इन प्लानिंग, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. सिक्स्थ पॉइंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट. एंड द लास्ट वन इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फीचर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. यार कौन से फैक्टर्स है, कौन से फीचर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? So in India we get Hewlett Packard, we get BMW, we get Honda, Apple, Coca-Cola, Gillette, McDonald's, Amex, Nescafe, Pepsi, Intel, General Electric, GE, Samsung, Nokia, Motorola, Dell, Walt Disney, Louis Vuitton, Microsoft, IBM, Google and whatnot. ये सारे factors influence करते हैं. So guys, let's check it out. What are the features influencing business environment? सबसे पहले external feature. Every firm is impacted by a variety of external circumstances, both directly and indirectly, was previously said. These elements can include people, governmental rules, environmental issues, as well as other enterprises and organizations. तो हर external factor हमें कहीं ना कहीं impact करता है. This can be people, governmental rules. Governmental rules के लिए एक word बता दो. Governmental rules के लिए one word बता दो. Give me one word. Not three. Correct. Who said it? Sir Gargi.
गार्गी द वर्ड इज रेगुलेशंस, लॉ, रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब आपको समझने पड़ेंगे. देन ओवरआर्किंग फैक्टर्स, ओवरआर्किंग यानी जनरल फैक्टर्स. Regardless of the presence of the firm, there are aspects of the society and the economy. They have an impact on all institutions. These are things like politics, law, technology, and other things. Regardless of the size of the market, all businesses are impacted by the general factors. यानी जैसे अगर मान लो इंडिया में हीट वेव्स आ गई, हीट वेव्स आ गई, बहुत ही गर्मी है, 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या एक बिजनेस को इंपैक्ट होगा या सारे बिजनेस को इंपैक्ट होगा? बोलो. सारे ही बिजनेस को कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका, लोग बीमारी पड़ने लगेंगे ना. Then specific factors, these are the elements that directly affect the firm, including clients, ठीक है, target market, rival suppliers. Every company has a unique set of unique element that make up its environment. So guys, अगर कोई ऐसी चीज होती है जिससे स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स. जैसे लॉकडाउन आ गया, सभी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हिट हो रहा था, सभी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हिट हो रहा था, तो ये जनरल फैक्टर हो गया, ओवरआर्किंग फैक्टर हो गया. इट्स ओवरआर्किंग है ना, जनरल. लेकिन कोई ऐसी चीज, जैसे गवर्नमेंट ने बोला फोन में इंटरनेट बंद, तो कौन सी इंडस्ट्री को इंपैक्ट होगा ज्यादा से ज्यादा? टेलीकम्युनिकेशन. तो ये स्पेसिफिक फैक्टर हो गया. देन इंटर रिलेशन ऑफ फैक्टर्स. The majority of elements that influence a business also influence one another. These are the variables that are internal and external, particular and general. So ये सारे एक दूसरे को लिंक करते हैं, इंटर रिलेशन होता है इसमें. उसके बाद हम सब ने ये जमाना देखा है कोविड-19 का. फिर से अगर एक बार लॉकडाउन आ सकता है क्या? लॉकडाउन फिर से, ऐसी पूछ रहा हूं मैं, आ सकता है क्या लॉकडाउन? अरे बहुत पुरानी बात होगी सर, वो तो आ सकता है क्या लॉकडाउन फिर से? बोलो जल्दी. सर बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है. बिजनेस एनवायरनमेंट में एक और मेजर इश्यू है अनसर्टन फ्यूचर. अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट फ्यूचर इज एक्सट्रीमली एल्यूसिव टू फोरकास्ट. यानी एल्यूसिव यानी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट. इट कैन swiftly change because there are so many different forces at work. Although some firms are capable of making accurate predictions for the near future, the factors influencing it are unstable. तो थोड़ा फ्यूचर अनसर्टन है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इश्यू क्रिएट कर सकता है और अनसर्टेनिटी के कारण बिजनेस में गड़बड़ होगी. देन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है. द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट नाउअडेज इज एक्सट्रीमली डायनामिक ड्यू टू द रैपिड चेंजेस in the technology and various societal variables. This makes it very challenging to define a corporate environment. Complex effects, the effects that various internal external factors have a business are quite complex. They may seem like a small factor at a time, but they have a larger impact overall and vice versa. So guys, ये constantly changing के बाद ना, मुझे ऐसा लगता है that they want to give, ये जो point है उसको वो 7th पॉइंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे प्रिंटिंग एरर हुआ है ऐसा मुझे लगता है. तो कांस्टेंट इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स इज द 7th पॉइंट. वहां पे वो छुप गया है उनसे, वो बता नहीं पाए, मिस प्रिंटिंग हुआ है वहां पे. सो पहले तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग environment changes. The corporate environment nowadays is extremely dynamic due to the rapid change in technology and various societal variables. पहले के जमाने में सोसाइटी में जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज जॉइंट फैमिली है, छोटा छोटा फैमिली हो गया. बोलो, जॉइंट फैमिली है, छोटा छोटा फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया. तो सोसाइटल वेरिएबल बदल रहे हैं, ठीक है. दिस मेक्स इट वेरी चैलेंजिंग टू डिफाइन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. एंड कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, इन सबका इफेक्ट शायद एक एक इफेक्ट, एक एक चीज जो इंपैक्ट करे वो बहुत ज्यादा ना करे, लेकिन ये सब जब साथ में आता है, दीज थिंग्स कैन मेक इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स. एंड लास्ट इज हाईली रिलेटिव. जैसे क्या है रे ये, व्हाट इज दिस? टेल मी व्हाट इज दिस? दीज आर कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, सोडा ड्रिंक्स, राइट. अब एक न्यूज आई थी, कोक एंड पेप्सी आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इन इंडिया बिकॉज दे आर चीपर एंड मोर इफेक्टिव. ओ गॉड, पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने की दवा, कोक और पेप्सी को यूज किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स. क्या इस न्यूज से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी कोक और पेप्सी को लेके? बोलो. हाँ. तो कोक और पेप्सी के लिए ये न्यूज क्या है, बताओ मुझे. कोक और पेप्सी के लिए ये न्यूज क्या है?
करेक्ट, कोक और पेप्सी के लिए इन यूज थ्रेट है। वेराज हमारे परम पूज्य, बोलो कौन, पतंजलि बाबा, पतंजलि बाबा को यहां क्या मिली, क्या मिली, उनके लिए थ्रेट थी, उनके लिए थ्रेट थी, पतंजलि बाबा के लिए, हमारे परम पूज्य बाबा जी के लिए अपॉर्चुनिटी थी ये। पतंजलि ने धीरे से क्या लॉन्च कर दिया, बोलो क्या लॉन्च कर दिया, पतंजलि के फ्रूट जूसेस, यानी किसी का नुकसान किसी और का फायदा। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, हाईली रिलेटिव। The factors that are beneficial towards one business may be doomed to another. Doom यानी negative, एक के लिए फायदा दूसरे के लिए नुकसान, doom negative बुरा। The relationship between factors that affect a business and particular business is highly relative, but there are also factors that affect similar business in an equal manner. So guys, ये सारे factors थे जो influence कर रहे थे business environment को। External factors, ओवरआर्किंग फैक्टर्स, यानी ओवरआर्किंग फैक्टर्स यानी कौन से फैक्टर्स, बोलो जल्दी, ओवरआर्किंग फैक्टर्स यानी जनरल फैक्टर्स, जनरल जो सभी को इंपैक्ट करते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं। सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देन अनसर्टन फ्यूचर, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रिलेटिव। कोई पॉइंट फिर से पढ़ाना है, बताओ मुझे। नहीं सर। परफेक्ट। सो गाइस, हमने आज पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है, यह हमें बैरी रिचमन और मेल्विन कॉपिन ने बताया था। इसका एग्जांपल दो तो मुझे, इसका एग्जांपल दो तो मुझे, लक्स वाला एग्जांपल। एक ही प्रोडक्ट, यूनिलीवर कंपनी का प्रोडक्ट है ये, इंडिया में 30 में रुपीज में बेचते हैं, दुबई में 130 रुपीज में बेचते हैं, और पाकिस्तान में खुला बेचते हैं 5 रुपए का। ठीक है। सो साइज ऑफ डेयरी मिल्क, एक बात बताओ, डेयरी मिल्क की कंपनी का नाम क्या है, बता सकते हो? डेयरी मिल्क की कंपनी, करेक्ट, मॉन्डलीज इंटरनेशनल इट इज। कौन से कंट्री का, कौन से कंट्री का प्रोडक्ट है? सॉरी ज्योति, बोलो बोलो कौन से कंट्री। चलो, मॉन्डलीज इंटरनेशनल कौन से कंट्री का प्रोडक्ट है, ढूंढो जल्दी। अमेरिका। ऑलराइट, सो या मिला कुछ, मिला? एनी गुड गूगल हिस्ट्री? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और बाकी लोग रिसर्च नहीं कर रहे क्या? शिकागो है। हो, चलो इसको पेंडिंग रखते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद आज का असाइनमेंट क्या, आपको क्या करना है, क्या करना है? खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है। ठीक है, ये मैं जरूर चेक करूंगा। करेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? सबसे पहले, इट एनेबल्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रेड बस, ठीक है, पनिंदर सामा को अपॉर्चुनिटी दिखी, यानी उसको तकलीफ हो रही थी, हर ऐप में कोई ना कोई दिक्कत थी लोगों को, उस दिक्कत को खत्म करी है हर ऐप ने। सो एनेबल्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, चेंजेस के साथ डील करने में मदद करता है, कोपिंग विद द चेंजेस। कोपिंग यानी डील करना, यानी चेंज होता है बिजनेस, अगर आपने चेंजेस के हिसाब से खुद को नहीं बदला तो तुम्हारा नोकिया हो जाएगा। करेक्ट है गाइस? आज नोकिया, पहले एक जमाना था नोकिया ही नोकिया होता था सबके पास, है मैं राइट गाइस? तुम्हारा पहला फोन जो तुमने देखा होगा जरूर नोकिया का होगा वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट से। लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया, बहुत हैवी प्राइस पे किया उन्होंने उसकी। सो यू हैव टू कोप अप विद द चेंजेस, अदरवाइज you'll be doomed, you'll be out of the business. It helps environment, business environment को स्टडी करोगे तो प्लानिंग में मदद होगी, it will help you in assistance in planning, then it helps in to improve the performance, and सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या मैनेज करने में मदद करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट की रिस्क को मैनेज करने में, जीरो नहीं कर सकते लेकिन हम लोग थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि मोर रिस्क मोर, बोलो, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो रिस्क को कम नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, इसको मैनेज करना है। और
पेटीएम को बहुत ज्यादा पेनल्टी बैन हो गया था ऐप कुछ महीनों के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था, आरबीआई का कंप्लायंस नहीं किया था, लॉ फॉलो नहीं किया था. All right, and this was followed by features influencing the business environment, external, specific, interrelation, uncertain, overarching, constantly changing, and highly relative. We have a lot of ground to cover in this chapter. बहुत सारे एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हमने पढ़ने हैं कल. ठीक है, मैगी एंड ऑल को से रिलेटेड भी आपको केस स्टडी बताने वाला हूं मैं. बहुत सारी सैमसंग और एप्पल की लड़ाई बताने वाला हूं इन द कमिंग लेक्चर्स. विच वन इज बेटर, हमारी नॉर्मल चाय या स्टारबक्स की चोको चिप जावा, कौन सी बेटर है? ठीक है, क्लोजअप की क्या इंडिया में स्टोरी है, ये सारी चीजें यू विल गेट इन द अपकमिंग लेक्चर्स. राइट नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज. आर यू रेडी गाइज? Yes. All right guys, let's get your test done. All right guys, I hope everyone has joined. Are we good to go? Shall we go ahead? Yes. All right guys, first question. 30 seconds मिलेंगे आपको आंसर करने लिए. Make sure you do good there. First question, go. For any organization, the business environment offers possibilities, threats, both A and B, none. For any organization, the business environment offers possibilities, threats, both A and B, none. All right, so yeah, the answer is both A and B. Possibilities यानी opportunities, threats यानी unfavorable conditions provided by the environment. Both A and B is the correct answer. Let's check it out. Let me tell you beforehand, the winner of today's quiz will get this book, 10 steps to the boardroom. ऑलराइट, यानी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रूम में जब जाओगे तो उसके लिए रेडी रहना है. तो रेडी रहने की 10 स्टेप्स, बोर्ड रूम तक पहुंचने की 10 स्टेप्स कौन सी है. बहुत ही बढ़िया बुक है ये, हाईली रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समडे. क्या कहते हो गाइस, व्हाट से? So yeah, Agent X9 is the fastest and is right on top, followed by Palak, then Foot, Stinglicious, Pablo, Adiba, Rucha, Gargi, and Vibhusha. All right, Red Bus से related question है. All right, next question. Are you ready? Go. Who created the online ticketing platform known as Red Bus? Sachin Bansal, Faninder Sama, Bini Bansal, Vijay Shekhar Sharma. So guys, the correct answer is Faninder Sama, Sachin Bansal Flipkart, Bini Bansal Flipkart, Vijay Shekhar Sharma. Any answer? विजय शेखर शर्मा ने क्या बनाया था या क्या बनाया है? रेड बस. फनिंदर सामा इज द करेक्ट आंसर. विजय शेखर शर्मा, एनी क्लू? विजय शेखर शर्मा ने बनाया था Paytm. Is the founder of Paytm. All right, let's check out the quiz leaderboard. Palak is right on top there. Yeah, very fast also. So agent तो चले गए बाहर. Palak followed by Gargi B, then Rucha, Vibhusha, Pablo, Samida, K, Mehek, Kathi, and Dragonite. All right. 3 more questions to go. Are you ready? Go. Take your own sweet time. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 40 सेकंड्स मिले.
A firm has to understand shift in the customer demand, new fashion trends, new government regulations, tech advancements. All this is covered into, all this is covered under, enables to identify business opportunity, helps in tapping useful resources, coping with changes, assistance in planning. Take your time. The answer is coping with changes. शिफ्ट इन द कंज्यूमर डिमांड, कस्टमर डिमांड शिफ्ट हो गया ना कि अब कंज्यूमर कुछ अलग चाहता है, न्यू फैशन ट्रेंड, ये सब चेंजेस की तो बात है. You have to learn, understanding and dealing, coping and dealing with the changes, to fight with the changes. All right, it wasn't an easy question though. Let's check out. Oh, Palak, you had a very promising start today. So Gargi is right on top there, followed by Rucha, then Mehak, Vibhusha, K, Dragonite, Palak, Urvi was the fastest in this question, Vedika and Chinmay. Just एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने यहां पढ़े. A company needs to be aware of constant change in the business environment, including shift in the customer demands, new fashion trends, new government regulation, new tech advancements. A firm can implement a response to deal with those changes. आपको ये कोप अप करना पड़ेगा. आपको अगर ये कोप अप नहीं करे आपने चेंजेस के साथ, तो आपका नोकिया हो जाएगा. उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने चेंजेस के अपने हिसाब से एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, आज मार्केट से बाहर हो गया. So you have to learn coping with the changes. You have to cope with the changes. You have to deal with the changes. You have to adapt as per the changing environment. And that is what this chapter is all about. Next question is related to Nokia. All right, guys. Are you ready? Go, go, go. Nokia failed to adopt the change by not incorporating dash into their smartphones. कैमरा तो उन्होंने डाला था, गुड कैमरा भी उन्होंने डाला था. Android OS and iOS. iOS तो Apple का ऑपरेटिंग सिस्टम है. The correct answer is Android OS. All right, yeah, that many students got this question right. Gargi is leaving nothing for no one, but Rucha is following her very ardently. So Gargi B right on top, followed by Rucha, then Vibhusha, then Mehak, Palak, Urvi, Vedika, Chinmay, Pablo, and Kritika. All right, guys. So there's a close contest going on between Gargi and Rucha, but closely following Rucha is Vibhusha and Mehak. They are right on the scene. They are still in the scene. Gargi से लेके कृतिका तक कोई भी अभी भी फर्स्ट आ सकता है. So do not lose hope. This is the last question. Trust me on this. Do not lose it. You've got one good question and you can still win this. It is anyone's quiz. Last question. Go, go, go. Business environments come in a variety of forms, including dash and dash environments. Business environment come in a variety of forms, including macro and micro, good and bad, positive and negative, helpful and harmful. So guys, yeah, winner. Let's check out the winner of today's quiz. The answer is micro and macro, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. Let's check out the final leaderboard position. Oh God, oh God, oh God. Oh God, Rucha. Oh God, the last moment. Rucha is the winner of today's quiz, followed by Gargi, then Mehek. Gargi was right on top throughout from the second question. And yeah, well done, Rucha. Then Vibhusha is there on fourth, followed by Palak. She got one question wrong and she paid the price for it.
and then Pablo, followed by Vedika, Samidha, Urvela, and Shravya. So Rucha, you won this. Many congratulations, and well done, guys. Rucha Abhyankar was the winner in the morning मॉर्निंग का क्लास एज वेल. ऑफलाइन क्लास जो हुआ था उसमें भी वो ज्वाइंट फर्स्ट थी, along with whom, if I'm not wrong, Kritika, Shreya. Shreya. Shreya, along with Shreya. So Rucha, well done, many congratulations. You deserve this book. All right, you deserve this rightfully. All right guys, so that's it for the day. कोई doubts है जो हमने आज business environment में जो cater किया है? Any doubts that you have? कोई doubts? Please tell me. बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी एजेंडा हमने देखा है अब तक, एनी डाउट्स गाइस? बिजनेस को, हर बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा और अडॉप्ट भी करना पड़ेगा. अदरवाइज तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर आपने चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? तुम्हारा नोकिया हो जाएगा, याद रखना. ऑलराइट, क्या अडॉप्ट नहीं किया था नोकिया ने? क्या अडॉप्ट नहीं किया था नोकिया ने? एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया था. और पेटीएम ने क्या गड़बड़ की थी? क्या गड़बड़ की थी जिस कारण लोग बैन हो गए थे थोड़े समय के लिए? Compliances or regulations followed. Beautiful, guys. All right, guys. So that's it as far as today's lecture is concerned. This is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.